Welcome back to my channel JBR Online Classes. Like, share and subscribe my channel. So hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes, and in this video I am going to start exercise 8.7. लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था 8.6 तक, सो हम स्टार्ट करेंगे 8.7. नाउ 8.7 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर 7 फार्मूला लिखा हुआ है. अब 7 न्यू फार्मूला है, ये फार्मूला आप लोगों को याद करना होगा और ये फार्मूला थोड़ा डिफिकल्ट टाइप ऑफ फार्मूला है. ओके, तो इसको आपको याद करना होगा कि विदाउट दिस फार्मूला यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके, एक्चुअली यू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, मगर अगर फार्मूला यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा सोल्यूशन. ओके, अब फार्मूला याद करने के लिए इसको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस करने से हर चीज़ सॉल्व होता है. ओके, सो हियर द न्यू फार्मूलर्स. 1 by integration 1 by x square minus square dx, that will be 1 by 2a log x minus a x plus a. Okay, here a means a number. Okay, might be it's 1 2 3 4 or in fraction also. Next one, a square minus x square, it will be 1 by 2a log. Now a plus x a minus x, हमेशा mod है, log जब भी होगा तब भी mod होगा. 1 by root over a square minus x square, it will be sin inverse x by a. 1 by x square, it will be 1 by tan inverse x by a. Then 1 by x root x square minus square, it will be 1 by a sec inverse by. और a वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ नहीं होता है. ओके, सो 1 by root over x square plus square, that will be log x plus root over x square plus square. And the last one, 1 by root over x square minus a square dx, that equal log x plus root over x square minus square. ओके, अगर आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और आप चाहते हो इसको कॉपी में लिखना है तो लिख लो. सो हियर द फर्स्ट प्रॉब्लम, एक्सरसाइज 8.1. 1 इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16. ओके, नाउ एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स होल स्क्वायर एंड 16 मीन्स 4 स्क्वायर. सो हियर यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. दैट मीन्स द फर्स्ट फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज 1 बाई 2a. सो 1 बाई 2a मीन्स हियर 4. सो 2 into 4 log, then x minus a, so x minus 4, x plus a, so x plus 4. Okay, so it will be 1 by 8 log x minus 4, x plus 4. Very easy. First 1 2 3 sums are very easy, just you have to write down the formula, nothing else. Next 1 2 integration 1 by 9 minus x square. Now 9 means 3 square minus x square, so here you can apply the formula integration 1 by a square minus x square. That means the second formula, and the formula is 1 by 2a, then log, then a plus x, so 3 plus x, 3 minus x plus c. Okay, so it will be 1 by 6 log 3 plus x, 3 minus x within mod plus c. Now the next one, sum number 2 1 integration dx by root over 1 minus x square. Now 1 means 1 square, so 1 minus x square, that means 1 square minus x square. So it is a third formula, and according to the formula it will be sin inverse x by a. So here a equal to 1, so sin inverse x by a, that means sin inverse x plus c. Second one, integration dx by x square plus 16, the fourth formula. Okay, 16 means 4 square, so x square plus 4 square, so it will be 1 by 4 tan inverse x by a, that means x by 4. Okay, first one is 1 by a, so 1 by 4 tan inverse x by 4 plus c. Now next, sum number 3 1 integration dx by root over 16 minus 9x square. Okay, अब 9x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 दिया है, बट हमने जो फॉर्मूला लिखा था पहले वहाँ पर x का कोफिशिएंट हमेशा 1 रहता है, दैट मीन x स्क्वायर सिंगल रहता है. अब यहाँ पर 9 दिया है तो हम लोग को क्या करना होगा, पहले 9 को कॉमन लेना होगा, क्योंकि x स्क्वायर को हमें सिंगल में कन्वर्ट करना है. सो इफ़ यू कॉमन 9, देन इट विल बी 16 माइनस 9. ओके, और यहाँ पर रूट दिया हुआ था, अगर यहाँ से 9 कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो रूट 9 होगा 3 हो जाएगा. सो dx by 3 रूट 16 by 9 माइनस स्क्वायर. समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो नाउ 1 by रूट 3 बाहर चला गया, एंड इट विल बी 16 by 9 मीन्स 4 by 3, सो 4 by 3 का होल स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर. सो हियर यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला 1 by रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स होता है. सो पहले होगा साइन इनवर्स, यहाँ पर 1 by 3 था, सो 1 by 3, देन x by a. अब a हो गया 4 by 3, सो x by 4 by 3, इसे आप चेंज करके 3x by 4 भी लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन, सम नंबर 3 2 dx by 25 plus 9x square,
एज सेम एज द प्रीवियस वन। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर सिंगल नहीं था, यहाँ पर भी सिंगल नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों को 9 कॉमन लेना होगा। अब यहाँ पर रूट था इसलिए हमने 3 लिखा है, बट यहाँ पर रूट नहीं है तो 1/9 ही होगा और ये वाला 25/9 रह जाएगा। फिर यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर। अब a² प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स, बट tan इनवर्स के पहले 1/a होता है, इसलिए 1/5/3। सो tan इनवर्स x/5/3, सो फाइनल आंसर विल बी 1/15। ओके, क्योंकि 1/5/3 इट विल बी 3/5। अब 3 कैंसिल आउट 9, सो 5 into 3 15, 1/15 tan इनवर्स 3x/5 plus c। Now सम नंबर 4। इन सम नंबर 4 dx/9x² - 1। फिर से यहाँ पर 9 कॉमन लेना होगा, सो इट विल बी 9x², 9 कॉमन x² - 1/9। नाउ x² - 1/9 मीन्स x² - 1/3। सो हियर यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला dx/x² - 1/3 होल स्क्वायर। दैट मीन्स x² - a² वाला फॉर्मूला बहुत ईजी है, सो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, प्लीज़ कंप्लीट कीजिए वाला। नंबर 2 भी एज सेम एज द प्रीवियस वन, 32 - 2x²। अगर 2 कॉमन ले लेते तो 1/2 हो गया और ये वाला हो गया 16 - x²। सो इट विल बी a² - x² वाला फॉर्मूला, 1/a² - x² फॉर्मूला। ओके, इट्स ऑल्सो वेरी इजी, सो आई होप यू कैन सॉल्व इट। नेक्स्ट सम नंबर 5(1), इंटीग्रेशन dx/√15 - 8x²। ओके, सो इसका मतलब यहाँ से 8 कॉमन लेना होगा। अगर 8 कॉमन लेगा तो यहाँ पर रूट था इसीलिए 1/√8 हो गया और नीचे ये वाला हो गया 15/8। अब 15/8 को तो मुझे होल स्क्वायर करना है क्योंकि a² होता है हमेशा फॉर्मूला में, तो इसे मैं क्या किया, √15/8 को होल स्क्वायर कर दिया। दैट मीन्स 15/8 हो गया और यहाँ पर x का होल स्क्वायर हो गया। नाउ √a² - x² का फॉर्मूला, इट विल बी ऑल्सो साइन इनवर्स, सो 1/2√2। अब 2√2 कैसे आया? 8 मीन्स 4√2। ओके, 4 into 2, सो 4 का वैल्यू हो गया 2 क्योंकि √4 = 2 होता है। सो 2√2 साइन इनवर्स x/√15/8। यहाँ से भी आप 8 निकल सकते हैं, 8 को हो गया 2√2, सो 2√2 √15 x और ये वाला हो गया 1/2√2 साइन इनवर्स। नेक्स्ट 5(2), इंटीग्रेशन dx/√1 + 4x²। सो पहले हम लोगों को क्या 4 कॉमन लेना होगा। अब रूट दिया हुआ है इसलिए हाफ हो गया, dx/1/4 + x²। 1/4 मीन्स हाफ का होल स्क्वायर, दैट मीन्स √a² + x² का फॉर्मूला क्या होता है? log x + √, ए वाला पोर्शन सेम रहता है। ओके, x² + 1/4 + c। नाउ नेक्स्ट सम नंबर 6(1), इंटीग्रेशन 2y² y² + 4 dy। ओके, सो पहले 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, y² y² + 4। अब नीचे y² + 4 दिया हुआ है, सो ऊपर में हमने क्या किया, +4 - 4 एडजस्ट किया है। अब +4 - 4 एडजस्ट करने से क्या हुआ, ए वाला पोर्शन अगर सेपरेट करेंगे तो ए वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 dy रह जाएगा। और यहाँ पर 4 था -4, सो पहले -4 into 2 8 हो गया, यहाँ पर 1 है सो 1/y² + 4। अब इसका इंटीग्रेशन तो y हो गया, सो 2y, और यहाँ पर हो गया 1/x² + a² का फॉर्मूला, क्योंकि 4 मीन्स 2 स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स। ओके, सो 8 into 1/2 दैट मीन्स 1/a tan इनवर्स x/a plus c। okay, so it was 2y - 4 tan inverse y/2 plus c। very easy। now second one, integration x⁴ + 1 x² + 1 dx। और मैंने पहले ही बोला था अगर न्यूमरेटर का पावर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से तो आपको क्या करना होगा, पहले डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पर x² दिया हुआ है, यहाँ पर x⁴ दिया हुआ है, तो ये वाला पावर ज़्यादा हो गया, सो डिवाइड करो। डिवाइड करने से यहाँ पर कोसेंट आएगा x² - 1 और रिमाइंडर आएगा 2। अब फॉर्मूला क्या था, बहुत बार बोल चुका हूँ, फॉर्मूला होगा पहले आपको लिखना है कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिविजर, कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिविजर। ओके, सो इसको सेपरेट करो, इंटीग्रेशन x² dx हो गया माइनस इंटीग्रेशन 1 dx हो गया, देन प्लस 2 कांस्टेंट बाहर चला गया, इंटीग्रेशन 1/x² + 1। अब x² का इंटीग्रेशन मालूम है, dx का इंटीग्रेशन मालूम है, और 1/x² + 1 tan इनवर्स होता है, सो 2 tan इनवर्स x + c। ओके, नेक्स्ट सम नंबर 7(1), इंटीग्रेशन x/x⁴ - 1 dx। नाउ x⁴ मीन्स x² होल स्क्वायर - 1। अब x² का डेरिवेटिव ऊपर में दिया हुआ है, सो लेट x² = z, इट विल बी 2x dx dz, सो x dx हो गया dz/2, सो 1/2 कॉमन हो गया, इंटीग्रेशन dz/z² - 1। z² - 1 मीन्स x² - a² का फॉर्मूला, सो 1/2 देन अगेन 1/2। ओके, क्योंकि यहाँ पर 2a होता है, सो 2 into 1 log z - 1 z + 1।
सो 1/4 log एक्स स्क्वायर, जेड का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी. 7 2 इंटीग्रेशन 3x² बाई 1 प्लस x⁶ dx. ओके, नाउ x⁶ मीन्स x³ होल स्क्वायर. अब x³ का यहाँ पर डेरिवेटिव दिया हुआ है 3x², सो x³ इक्वल टू z, वहाँ से 3x² आ गया, सो हो गया 1 प्लस z². सो इट्स वेरी इजी, tan इनवर्स z का फॉर्मूला है, सो tan इनवर्स z प्लस c, सो इट विल बी tan इनवर्स x³, क्योंकि x³ की z का वैल्यू x³ में था. हमेशा याद रखना लास्ट में z नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप z लेट किया है तो आपका फाइनल जो दिया हुआ था, फाइनल वैल्यू जो आएगा, जो आपका इनिशियल वैल्यू था x था, तो इनिशियली यहाँ पर लिखना है. ओके, z नहीं रहेगा यहाँ पर. नेक्स्ट सम नंबर 8 इंटीग्रेशन x² रूट x⁶ प्लस a⁶ dx. ओके, x⁶ मीन्स x³ होल स्क्वायर, a⁶ मीन्स a³ होल स्क्वायर. अब x³ के ऊपर x² दिया हुआ है, सो x³ इक्वल टू z, 3x² dx इक्वल dz, 1/3 बाहर चला गया, इंटीग्रेशन dz रूट ओवर z² प्लस a³ होल स्क्वायर. ओके, सो 1/3 log z प्लस रूट ओवर z² प्लस a³ होल स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला डाल दिया. सो इट विल बी 1/3 log x³ प्लस रूट z6 प्लस x6 प्लस c. 8 2 इंटीग्रेशन x³ बाई रूट ओवर 1 माइनस x⁸. नाउ x⁸ मीन्स x⁴ होल स्क्वायर. ओके, x⁴ का डेरिवेटिव होता है x³, सो x⁴ इक्वल टू z, 4x³ dx इक्वल टू dz. सेम फार्मूला सेम प्रोसेस दोनों प्रॉब्लम में. ओके, सो 1/4 यहाँ चला गया, dz बाई 1/1 स्क्वायर माइनस स्क्वायर. नाउ a² माइनस x², फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स. सो 1/4 साइन इनवर्स z बाई 1, सो 1/4 साइन इनवर्स x⁴ प्लस c. सम नंबर 9 इंटीग्रेशन रूट x रूट ओवर a³ माइनस x³ dx. नाउ रूट x a³ मीन्स a⁴/3/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x³ मीन्स x⁴/3/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं. नाउ लेट x⁴/3/2 इक्वल टू z, सो इट विल बी 3/2 x⁴1/2 dx dz. नाउ x⁴1/2 मीन्स रूट x, सो यहाँ पर रूट x दिया हुआ है, रूट x dx इट विल बी 2/3 dz, सो 2/3 बाहर चला गया, यहाँ dz हो गया, और इंटीग्रेशन a⁴3/2 होल स्क्वायर माइनस z². सो अगेन a² माइनस x² वाला फॉर्मूला, सो 2/3 साइन इनवर्स z बाई a⁴3/2, z का वैल्यू हो गया x⁴3/2, सो x⁴3/2 बाई a⁴3/2 प्लस c. नेक्स्ट 9 2 इंटीग्रेशन 3x बाई 1 प्लस 2x⁴ dx. नाउ 2x⁴, ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 2 कॉमन ले लेंगे. 2 कॉमन ले बाहर चला गया, 1/2 हो गया, ये वाला 1/2 और ये वाला हो गया सिर्फ x4. अब x4 का हम कैसे लिखेंगे, x² होल स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, 3 भी बाहर चला जाएगा, तो 3/2 हो गया. ओके, नाउ x² यहाँ पर दिया हुआ है, x² इक्वल टू z, सो इट विल बी 2x dx dz. सो यहाँ से एक 2 आएगा, सो ओवर 2 बाहर चला गया, हाफ हो गया. सो इंटीग्रेशन dz बाई 1/√2, क्योंकि यहाँ पर हाफ दिया हुआ था, सो 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस z², दैट मीन्स a² प्लस x². द फॉर्मूला विल बी tan इनवर्स z बाई a, और यहाँ पर क्या था 2 2 4, सो 3/4 हो गया. ओके, 3/4 √2 कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लिखना होगा 1/a, फॉर्मूला में दिया था. अब a का वैल्यू क्या है 1/√2, दैट्स वाई √2. सो 3√2/4 tan इनवर्स z का वैल्यू बिठा दो x√2. ओके, दैट मीन्स x², सॉरी z इक्वल टू x², सो x² √2. सो फाइनल वैल्यू अगर यहाँ पर 4 मीन्स 2 × 2 कैंसिल आउट कर दो, सो 3/2 √2 tan इनवर्स √2 x² प्लस c. नेक्स्ट सम नंबर 10 इंटीग्रेशन cos x रूट ओवर 4 माइनस साइन स्क्वायर x dx. नाउ साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, सो लेट साइन x इक्वल टू z, सो cos x dx इक्वल टू dz. अब चेंज कर दो, ऊपर वाला dz हो गया, नीचे वाला 2² माइनस z² हो गया, क्योंकि z इक्वल टू साइन x, वेरी इजी. सो इट विल बी साइन इनवर्स फॉर्मूला, साइन इनवर्स z बाई 2. अब z का वैल्यू क्या था साइन x, सो 1/2 साइन x. नेक्स्ट वन इंटीग्रेशन sec² x रूट ओवर tan² x प्लस 4. अब tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव sec² होता है, सो tan x इक्वल टू z, सो इट विल बी sec² x dx इक्वल टू dz. ओके, इसका मतलब आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना होगा, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस. ओके, प्रैक्टिस करने से कोई भी प्रॉब्लम जल्द सॉल्व हो जाता है. सो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगा. सो इंटीग्रेशन dz बाई रूट ओवर, अब 10 की जगह यहाँ पर z² बिठा दो, 2 की जगह 2² कर दो, क्योंकि यहाँ पर 4 था, सो log z प्लस रूट ओवर z² प्लस 2². सो z का वैल्यू tan x हो गया, और यहाँ पर tan² x और 2² मीन्स 4, सो 4 प्लस tan² प्लस c.
आई होप आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात कीजिए, आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, या टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है उस पर जाके भी आपको पिंग कर सकते हैं। ओके, एंड इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, because one by one I upload all the videos I'm trying to upload. Okay, I'm trying to upload all the videos from the integrals and the rest of chapters from class 12 ML Agarwal. Next, sum number 11(1), integration sin x by 16 minus 9 cos square x dx. Okay, अब cos का डेरिवेटिव sin होता है, so cos x equal to z minus sin x dx equal to dz. So it will be 1 by 9 sin x dx. Okay, अब sin x dx यहाँ पर माइनस होगा, so minus 1 by 9 एंड डी रेट। ओके, पहले यहाँ पर 9 तो नहीं रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कॉस सिंगल होना चाहिए, तो पहले मैंने 9 कॉमन ले लिया, इसलिए यहाँ पर 1 by 9 हो गया। और ये वाला 16 by 9 दैट मीन्स 4 by 3 होल स्क्वायर। सो नाउ 4 by 3 होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था यहाँ पर लॉग, और लॉग के पहले क्या लिखना होगा? लॉग के पहले यहाँ पर लिखना होगा 1 by 2a। ओके, सो मैंने 1 by 2a लिख दिया यहाँ पर, सो इट विल बी 4 into 8 एंड यहाँ 3a चला गया। लॉग 4 by 3 दैट मीन्स a प्लस जेड a माइनस जेड, सो कैंसिल आउट कर दो। 1 by 24 माइनस लॉग 4 प्लस 3x, क्योंकि यहाँ 3z होता है, सो z का वैल्यू cos x था, सो 3x। अब डिनोमिनेटर में जो 3 है वो 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 4 प्लस 3 cos x, 4 माइनस 3 cos x, ओके, प्लस c। नाउ नेक्स्ट सम नंबर 11(2) एज सेम एज दिस वन, सो आई होप यू कैन सॉल्व इट। नाउ सम नंबर 12(1), इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x रूट ओवर sin 2x dx। ओके, नाउ ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट टाइप प्रॉब्लम है। यहाँ पर sin 2x दिया हुआ है। अब sin 2x को हम क्या करेंगे? यहाँ पर 1 - 1 से एडजस्ट करेंगे। ओके, सो इसको मैंने 1 - 1 माइनस sin 2x कर दिया, फिर 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, sin 2x फिर से लौट के आ जाएगा। सो नाउ दिस वन विल बी चेंज इनटू sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ध्यान से, ओके, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और sin 2x चेंज इनटू 2 sin x cos x। सो फॉर्मूला क्या हो गया? sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज द फॉर्मूला ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। सो नीचे आ गया 1 माइनस दिस वन होल स्क्वायर, और ऊपर में ये वाला था। सो नाउ लेट sin x माइनस cos x इक्वल टू z। sin x का डेरिवेटिव होता है cos, और cos का होता है माइनस साइन, सो प्लस sin x हो गया। अब देखिए ऊपर से एकदम आइडेंटिकली सेम हो रहा है, सो इट विल बी नाउ dz। एंड नीचे वाला हो गया 1 माइनस जेड स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स जेड। ओके, सो साइन इनवर्स दिस वन प्लस सी, प्रूव्ड। 12(2), इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x देन 9 प्लस 16 sin 2x। ओके, sin 2x दिया, इससे हमारा जो पहले हम सॉल्व किया था वही प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करेंगे, पर पहले हमको क्या करना होगा? 16 को यहाँ से हटाना होगा। सो 1 by 16 कॉमन ले लिया, 9 by 16 प्लस sin 2x। सो फिर से क्या हो गया? 9 by 16। आप sin 2x को एडजस्ट करिए 1 - 1 से, जैसे मैं लास्ट प्रॉब्लम में किया था। सो इट विल बी 9 प्लस बाई 16 प्लस 1 कितना हो गया? 25 by 16। सो 5 by 4 होल स्क्वायर माइनस एंड दिस वन होल स्क्वायर। सो नाउ इट विल बी लेट दिस वन इक्वल टू z, और जैसे मैंने लास्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसी से सॉल्व करिए। यहाँ पर फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। ओके, सो लास्ट वाला प्रॉब्लम में वहाँ पर रूट दिया हुआ था, इसीलिए हमने साइन इनवर्स लिखा, और यहाँ पर रूट नहीं है तो सिर्फ a स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, लॉग वाला फॉर्मूला होता है। सो 1 by 16 बाहर आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 1 by 2a, सो 1 by 2 इंटू 5 by 4, ऐसे a का वैल्यू है 5 by 4। नाउ लॉग 5 by 4 प्लस जेड, 5 by 4 माइनस जेड। अब z का वैल्यू यहाँ पर बिठा दो, sin x माइनस cos x। ओके, सो 4 इंटू जेड, सो 4 इंटू दिस वन एंड 5 माइनस 4 इंटू दिस वन। ओके,